یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا، اس کے سفید ہوتی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس پہ پہلا آپشن آل کا رہے گا ALL، اس کو بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، ترقی کرے، آگے بڑھیں، تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ گوگل پے، فون پے یا پے ٹی ایم کے ذریعے سے آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی، اس طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں۔ چلیے آئیے ناظرین، آج 3 دن کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ کل 3 دن عید کے ہو چکے ہیں، آج پہلا دن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کو، پورے عالم اسلام کو، جہاں جہاں تک ہماری نیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں، سب کو میں عید کی مبارکباد ایک بار پھر پیش کرتا ہوں۔ عید کے پہلے ایک بار پیش کیا تھا، دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو بالکل خوش و خرم رکھے، ہر قسم کی مصیبت بیماری سے اللہ آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اور خاص طور سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، معصوم بچوں کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ اسرائیل جیسے یہودیوں، جیسے آتنکوادیوں کو، ٹیررسٹ کو اللہ ہلاک و برباد فرمائیں، اور بیت المقدس قبلہ اول کو اللہ آزاد فرمائیں۔ جی ہاں ناظرین، پہلی بڑی خبر فلسطین کو لے کر میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ انٹرنیشنل نیوز میں بھی میں اس کی تفصیل لاؤں گا، اور پرائم نیوز آج میں اسپیشل بنا رہا ہوں، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا، لیکن فلسطین کی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیلی آتنکواد کے خلاف اب امریکی شہر ہیوسٹن کے علاوہ اسپین، برطانیہ اور جرمنی سمیت بہت سے ملکوں میں مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم فلسطینیوں کو خاموش نہیں کر سکتے۔ اور اب یہودی بھی مان رہے ہیں، کچھ ملکوں میں یہودیوں نے ہی باقاعدہ یہودیوں کے خلاف، فلسطین کے یہودیوں کے خلاف باقاعدہ مورچہ نکالا، آندولن کیا کہ یہ لوگ یقیناً ظلم کر رہے ہیں اور معصوم فلسطینی بچوں کو مار رہے ہیں اور بمباری کر رہے ہیں، یعنی دنیا مان رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آتنکوادی ہے، ٹیررسٹ ہے۔ لیکن خیر، ہمارے ملک میں کچھ گوبر بھکت، اندھ بھکت ایسے ہیں جو ابھی بھی صرف مسلمانوں سے دشمنی ہونے کی وجہ سے فلسطین کے معصوم بچوں کے خون کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں، اور ان پر ظلموں کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایسے آتنکوادی ہے جو بے قصور مارے جا رہے بچوں پر بھی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں کنگنا رناوت جیسے لوگ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے اندھ بھکت ہے، گوبر بھکت ہے، جو معصوم انسانوں کے قتل پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن فلسطینیوں کے جذبے کو بھی سلام کہ فلسطین کہہ رہا ہے کہ ہم یہودیوں کے لیے فلسطین کو جہنم بنا دیں گے، یعنی ہم کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے بھی اعلان کر دیا ہے، اور فلسطینی بچہ ہتھیار اٹھا لے، اس طرح کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور فلسطین کا بچہ بھی یہودیوں کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، کسی حال پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، گزشتہ کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی اور ملک بھارت کے کئی علاقوں میں طوفانی ہوائیں اور موسلا دھار بارش بھی ہوئی ہے۔ توکتے طوفان جو ہے اس کے تعلق سے خبریں آ رہی ہے کہ کرناٹک میں 4 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جو سمندری طوفان تھا، اور تقریباً 73 گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔ گوا میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی ہے، 1 شخص ہلاک ہوا ہے۔ گجرات میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ولساڑ سے ہمارے عرفان قادری نے بتایا، اور نعیم سنجان والا نے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی روانہ کی ہے۔ گجرات کا جو ساحل سمندر ہے وہاں پر بھی توکتے طوفان کی خوفناک لہریں دیکھی گئی، اور بروڈا سے گجرات
गुजरात से हमारे रिपोर्टर शेठ हाफिज ओवैस ने भी बताया कि गुजरात में शदीद बारिश की वार्निंग जारी कर दी गई है। बहरे अरब में उठा समंदरी तूफान तोकते अब निहायत शदीद ज़ुमरे के तूफान में तब्दील हो गया है और इसके आइंदा आने वाले 24 घंटे में मज़ीद खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेने और 18 मई की सुबह गुजरात के महुआ, भावनगर और पोरबंदर के दरमियान से साहिल से टकराने का अंदाज़ा जाहिर किया गया है। नाज़रीन, आइए तीसरी बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में लॉकडाउन में तौसी कर दी गई, यानी मुद्दत बढ़ा दी गई। ऐसे ही महाराष्ट्र में अब सख्त अंदाज में यूँ समझिए कि कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और काफ़ी सख्ती के साथ में हर जगह पर पुलिस फजूल बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है और महाराष्ट्र में भी 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार में कमी आई है, अच्छी बात है। हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला, और ईद के दिन तो पूरे भारत के मुसलमानों ने ईद की नमाज में दुआएं की कि मेरे मौला अब बस रहम फरमा, करम फरमा और हमारे इस प्यारे मुल्क से इस ख़तरनाक वायरस को ख़त्म फरमा। तो कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार में अल्हम्दुलिल्लाह कमी आई है, शफायाब मरीज़ों की भी तादाद बढ़ रही है, लेकिन फ़िलहाल कुछ स्टेट्स में बाकायदा लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी कर दी गई है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ रही है। जी हाँ, गोदी मीडिया के पास, दलाल मीडिया के पास मुसलमानों की अच्छी खिदमत या अच्छे कामों को बताने का वक्त नहीं, इसलिए हम अपने चैनल से ऐसी चीज़ें बताते हैं। खैर, मैं आपको बताऊं कि ईद के दिन भी महाराष्ट्र के नांदेड़ से खबरें आ रही कि ईद के दिन भी मुस्लिम नौजवानों ने नॉन मुस्लिम हिंदू भाइयों की, गैर मुस्लिमों की आखिरी रसूमात अदा की, अंतिम संस्कार किया। और मैं आपको बता दूं कि इन जवानों ने अब तक 900 से ज़्यादा कोरोना के मरीजों का अंतिम संस्कार किया है। मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि ईद का दिन खुशी का दिन होता है, लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, घर वालों से मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, शीर खुरमा पीते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। लेकिन ईद के दिन भी मुसलमान नौजवानों की टीम काम करती रही और ईद के दिन भी इन्होंने नॉन मुस्लिम भाई बहनों का, मरने वाले भाई बहनों का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि लोग ऐसे लोगों की रिश्तेदार और बच्चे भी अपने माँ बाप की लाशों को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। खैर, ज़िला इंतज़ामिया ने इन नौजवानों की, मुस्लिम यूथ्स की सराहना की, उनकी तारीफ़ की, उनका हौसला बढ़ाया। मैं आपको बता दूं कि हैप्पी क्लब के रूह रवां मोहम्मद शुएब और उनकी टीम का समाजी खिदमत का सिलसिला अभी भी जारी है। वो एक एम्बुलेंस के ज़रिए सर्विस भी लोगों को देते हैं। आज के दौर में ये काम इंसानियत के लिए काबिल सताइश इक़दाम है। हम भी हैप्पी क्लब के इन मुस्लिम नौजवानों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और वायरल न्यूज़ लाइव की जानिब से हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं उनके इस अच्छे काम पर और दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाएँ। चलिए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। हमारे प्यारे प्यारे मुल्क के प्यारे प्यारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 रियासतों के मुख्यमंत्रियों से, वज़ीर आला से बातचीत की और ख़ास तौर से खबर है कि यूपी में वैक्सीन ज़ाय ना हो, इसकी अपील मोदी जी ने की है। अब लोग हंस भी रहे कि पहले वैक्सीन पहुंचाओ तो सही, पूरे मुल्क में ना दवाएं मिल रही है, ना वैक्सीन मिल रही है, ना हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है, सत्यानाश मार दिया पूरे मुल्क का। लेकिन खैर, उन्होंने 4 स्टेट्स के वज़राए आला से बातचीत की है और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ जी से कहा है कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीन ज़ाय हो रही है, वैक्सीन को ज़ाय ना होने दें। तो लोग कह रहे हैं कि हज़रत मोदी जी पहले आप वैक्सीन तो दे दें। अब वैक्सीन का हाल ये है कि छत्तीसगढ़ के वजीर आला ने, भूपेश बघेल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से खुद कहा कि रियासत में हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। खुद महाराष्ट्र का हाल ये है कि वैक्सीन की कमी आ गई है, कई वैक्सीन सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। तो खैर, अब भूपेश जी ने भी, वजीर आला ने भी, महाराष्ट्र के भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि पहले वैक्सीन तो दीजिए हजरत। न वैक्सीन मिल रही है, न इंजेक्शन मिल रहे हैं, न बेड मिल रहे हैं, न हॉस्पिटल मिल रहे हैं। तो खैर, अभी फ़िलहाल बहुत बुरा हाल है, लेकिन हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की जो नैया डूबती हुई नज़र आ रही है, अल्लाह ताला इसको पार कराए और हमारे मुल्क के तमाम लोगों की अल्लाह हिफाजत फरमाएँ।
नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है किसान आंदोलन। आप सब जानते हैं कि बड़ी कोशिशें की है जनाब मोदी जी ने अलग अलग बहानों से इनको उठाने की, लेकिन ये किसान भी उठने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि तुम दलाली में इतने मस्त हो कि तुम किसानों की सुनने को तैयार नहीं, मुल्क के अन्नदाताओं की सुनने को तैयार नहीं, तो हम भी इतने मस्त है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम उठेंगे नहीं। और फिलहाल राकेश टिकैत जो किसानों के लीडर है, उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ज़बरदस्त अंदाज में वार किया, हमला किया और कहा कि मोदी 2022 में सदर जमहूरिया बनकर राज करेंगे। जी हाँ, यानी वज़ीर आज़म तो वो बनने के लायक नहीं रहे और उनको भी यकीन हो गया है कि अब शायद लोग मुझे दोबारा नहीं चुनेंगे, लेकिन फिर भी उनकी तमन्ना है कि 2022 में वो सदर जमहूरिया बन जाए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनकर मुल्क पर राज करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिन 5 स्टेट में रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, बहुत समझाया, लेकिन मुल्क का बड़ा आदमी, बड़े पद, बड़ा जिम्मेदार, दो लोग, एक पीएम, एक गृह मंत्री, वजीर दाखिला, मगर सत्ता इतनी प्यारी थी, कुर्सी इतनी प्यारी थी कि समझाने के बावजूद लाशें देख रहे थे मुल्क में, मगर फिर भी प्रचार प्रसार करते रहे। आखिर बम फूट गया कोरोना का और मुल्क में लाशों के अंबार लग गए। अब खबरें आ रही है जिन 5 स्टेट्स में इलेक्शन था, इंतखाब थे और प्रचार और प्रसार खूब होता रहा, उन 5 स्टेट्स में कोरोना के केसेस में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। 29% मामला केरल में सामने आ रहे हैं, तमिलनाडु में सामने आ गए, आसाम में सामने आ गए, पुडुचेरी में सामने आ गए और मगरबी बंगाल से सामने आ गए। और आपने, हमने सब ने देखा कि ये बड़े पद पर बैठे आदमी लाखों लोगों को जमा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, भाषणबाजियां कर रहे थे और सोने पे सुहागा ये कि मास्क भी कहीं नहीं लगा रहे थे। आखिर अब कोरोना का बम फूट गया और अब रिपोर्ट्स आ रही है कि जिन जिन जगहों पर इलेक्शन था या है, वहां पर कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने उन 25 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए थे। जी हाँ, उन्होंने पोस्टर में क्या लगाया था? उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी ने हमारी हालत ख़राब कर दी है और अब हाल ये बना दिया है कि जनाब हमें दवाएं भी नहीं मिल पा रही है। मोदी जी ने हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर मुल्क क्यों भिजवाया? क्योंकि मोदी जी ने थोड़ी सी कॉलर टाइट करने के लिए, यहाँ लोग मर रहे हैं लेकिन वैक्सीन बाहर भिजाकर थोड़ी सी कॉलर टाइट करना थी कि देखो हम कितने दानी हैं और हमारे मुल्क में इतना अच्छा माहौल है कि हम वैक्सीन बाहर भिजा रहे हैं। तो मोदी जी ने ये वैक्सीन बाहर भिजाकर हमारे बच्चों के साथ जुल्म किया है। आज हमारे बच्चों को, हमको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो जिन लोगों ने मोदी जी के खिलाफ ऐसा प्रचार किया था और पोस्टर लगाया था, दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पोस्टर लगाकर चैलेंज किया कि चलो आओ, हम भी ये पोस्टर लगा रहे हैं, दिल्ली पुलिस में अगर दम है तो वो हमें गिरफ्तार करें। जी हाँ, ये सच्ची बात है कि मुल्क में खुद बुरा हाल था तो मोदी जी ने वैक्सीन आखिर बाहर क्यों भिजवाया? आज हाल यह है कि मुल्क में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर बाकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर ने भी आवाज़ उठाते हुए कहा कि कोविड मुखालिफ वैक्सीनों की किल्लत इस वक्त पूरे मुल्क में है, जिसकी वजह से मुल्क को काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ रही है और कई लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। और ये सब सिर्फ झूठी शान के खातिर मोदी जी ने किया है और वैक्सीन को बाहर भिजवाकर भारत के लोगों को मरवाया है। और अब हाल ये है जनाब की खबरें आ रही है कि रूस से, जी हाँ, रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन खुसूसी प्लेन के ज़रिए से हैदराबाद पहुंची है। यानी बाहर से अब वैक्सीन आ रही है और मंगाना पड़ रही है। और हज़रत ने अपनी झूठी शान की खातिर यहाँ की वैक्सीन पहले तो बन नहीं रही थी और बनी तो उसको बाहर भिजवा दिया था। इसी को लेकर लोग अब भारत में नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और मोदी के खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि मोदी और योगी जो है अपनी बदनामी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि जिस तरह हमारे मुल्क की छोटे छोटे देश भी अब मदद कर रहे हैं, जबकि विश्व गुरु हम बनने वाले थे। जी हाँ, बातें दबा के हो रही थी, विश्व गुरु हम बनने वाले थे, लेकिन 7 साल की गलत पॉलिसियों ने इतना बुरा हाल कर दिया कि आज छोटे छोटे देश हमारी मदद कर रहे हैं। और अब देश
देश इतना आत्मनिर्भर बन गया है और मोदी जी ने हमें इतना आत्मनिर्भर बना दिया है कि अब हमको अपनी लाश, अपने रिश्तेदार की लाश कांधे पर उठाकर खुद ले जाना है, क्योंकि अब हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। मोदी जी ने हमें वो हौसला पैदा कर दिया है कि मैं तुम्हें एम्बुलेंस भी दूंगा नहीं, अगर तुम मर गए तो तुम खुद आत्मनिर्भर बनो और अपनी लाशें अपने कांधों पर उठाकर लेकर जाओ। तो खैर, ऐसे वक्त में अब फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बिग बी, अमिताभ बच्चन की बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने कहा है, अपने ब्लॉग पर लिखकर यह खबर दी है कि मैं 25 करोड़ रुपए के करीब कोरोना फंड में दे रहा हूं। और उन्होंने कहा कि मैं ब्लॉग पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि लोगों को ये पता चले कि इस वक्त मुल्क के लोगों को ज़रूरत है मदद की। मदद के लिए आप भी आगे बढ़ें। और मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूं, बिग बी ने कहा कि मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूं कि यहाँ सच में मदद हो रही है, सिर्फ कोरे वादे नहीं किए जा रहे हैं। जी हाँ, यानी उन्होंने इशारा भी कर दिया कि मुल्क में कोरे वादे किए जाते हैं, जुमलेबाजी। हालांकि बिग बी भी है, बिग बी भी जो है वो भक्तों में शुमार होते हैं, लेकिन अब मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि भक्त भी अब परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि अंधभक्ति हमने की थी, जो अच्छी चीज़ नहीं है। मुल्क में बिल्कुल बुरा हाल है, बदतर हाल है, और सिर्फ जुमलेबाजियाँ हुई है, भाषणबाजियाँ हुई है, लोगों की मदद नहीं हो रही है। तो बिग बी ने मदद दिया और 25 करोड़ रुपये का कोरोना फंड में उन्होंने रकम दी है और लोगों से ये भी कहा है कि यकीनन बदतर हालात है, आप भी अगर खुदा ने आपको दिया है तो बढ़ चढ़ कर इस वक्त लोगों की मदद करें और जुमलेबाजी ना करें। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के सीएम वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि जसद खाकी को, यानी मुर्दों को, लाशों को जो एजाज़ नहीं मिल पा रहा है, जो उनकी इज़्ज़त नहीं की जा रही है, ये इंतहाई तकलीफ़ दे बात है। मिस्टर गहलोत ने कहा कि मुल्क के कई मकामात पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए, गुज़िश्ता कल भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि एक शख्स अपनी बीवी को की लाश को कांधे पर ले जा रहा है। तो खैर, जय हो मोदी जी की। ये सब अनभक्तों का किया कराया है, पूरे मुल्क को तो भुगतना है, जो बग़ैर सोचे समझे सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में फ़ैसला किया था और वोट दिया था, या लालच में 15-15 लाख मित्रों यूं ही आ जाएंगे सबके अकाउंट में, तो अब भुगतना तो है। लेकिन खैर, अशोक गहलोत साहब ने भी साफ तौर से कहा कि नदियों में लाशें तैर रही है और जमुना के किनारे और गंगा के किनारे लाशें मिल रही है और दफनाए जाने से लोग बेचैन हो गए हैं और ये अच्छी चीज़ नहीं है। मगर अनभक्त और गोबर भक्तों का यह हाल है कि फिर भी नशे में इतने मस्त है कि आपने कंगना रनावत की एक वीडियो देखा होगा जो वायरल हो रही है कि क्या भंग पी हुई है, ये कौन सा नशा की हुई है कि ये बेशरम फिर भी अनभक्ति में या भाजपा और मोदी जी को खुश करने में ऐसी लगी हुई है कि लाशों के वीडियो पर भी कह रही है बेवकूफ़ की औलाद कि ये वीडियो जो है ये नाइजीरिया की है। तो खैर, उसके खिलाफ हालांकि यूट्यूब पर बहुत लोग उसकी मजाक भी उड़ा रहे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुल्क बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है, मगर गोबर भक्त अभी भी भक्ति में, अंधभक्ति में लगे हुए हैं।